Viewers, welcome back to our channel Kusuha Academy once more. Hope you all are fine and doing well. Guys, this is very hard time for the people of our country and world. So please don't move out of your home unnecessarily. Stay at home and be safe. So guys, in this video we will cover formula tab. So far we have covered home tab, insert tab, and page layout. Okay. So in formula tab, we will cover the insert functions. In that, we will cover sum, average, maximum, minimum, and count. How it works, and then auto sum. In auto sum, what functions comes and how it works, and the recent used formula. And in financial, we will cover DV, future value. ठीक है. PMT मतलब present PMT, IPMT, PPMT. Okay. And in logic formula we will cover true, false, and formula how to use this. Okay, and where we can use it. And in text we will cover the lower, upper, proper, left, right, guys, in the proper. And date and time, lookup and reference. In that we will cover the index and match. Guys, lookup in under the lookup there is a formula index and match. So index is just same like VLOOKUP. Okay. In the next we will cover the in math and trigonometry ABS, even, odd, rand between. Okay, in more functions we will cover count, counter, count blank, maximum, minimum, binary to decimal, decimal to binary, is blank, is text. Okay. So without wasting time, let's start with the first functions in the formula tab. Okay. So here there are certain numbers. Okay, given. So what we have to do, like we want to sum this formula here. Okay. So with the help of the insert function, so what we will do, we will click on the insert functions. You guys must be watching. So in this search functions we have to type sum. Okay. Once you type sum and press enter, hit enter, so you will find the sum formula. Okay. So one box will be coming. Okay, the one box will be pop up. So here it is asking numbers, number 1, number 2, number 3. So why this is coming? If suppose this is the first number, okay, we are taking, and the same if we will have this the numbers here, so we have to put in this second number. Okay, like that the fourth and fifth numbers are coming, so that's why. So what next we will do, we will hit the OK button. Okay, click the OK button, then we will find out value. Okay, same way we will click on the average insert function, then we will type here average, and then hit the enter. We will find out the average, and then we will click, the pop-up will come, and then we will select that whole numbers whom we want to get the average, and then we will click on the OK button. We will find the average. Okay, this is very simple. Okay, so maximum and minimum. Maximum under under the total numbers, which number is maximum and which number is minimum. ओके, इसमें कौन सा छोटा वैल्यू है एंड कौन सा बड़ा वैल्यू है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम. मैक्सिमम में बिगेस्ट वैल्यू एंड द मिनिमम में लोवेस्ट वैल्यू. ओके, सो let's take the now click on the function, then here click the max. Okay, and hit the enter button, and again hit the
enter button. Okay, now the next dialog will come. Here we have to select the all numbers where we want to know the maximum numbers. Okay, so again we have to click on the OK button. We will find out the 96 is the maximum value in the given numbers. Like देखो 5, 24, 96, 30 and 94. So obviously 96 is the higher value. Okay, same wise we have to click on the insert function, then we have to type MIN, then put the hit the enter, and again hit the enter, then the numbers will come. It will ask which give me the the array in which you want to find out the minimum value. Okay, then again put hit on the OK button. Okay, so 5 is the minimum value. Look here in that series, 5 is the minimum value. Okay, and the what does count do? And with the help of the count we can count how many numbers are there. Okay, so there is a difference between count and counter. I will tell you later. Okay, the next functions, it is already given here under the more functions, it is here. Okay, so I will tell you the difference between count and counter. So हम लोग यहाँ पे काउंट का यूज क्या करेंगे? काउंट से हम लोगों को फायदा ये होगा कि कितने नंबर्स हैं, हम लोग को अगर काउंट करना होगा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द गिवन सर्टेन नंबर्स, तो ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितने नंबर्स है। जैसे देखो आप यहाँ पे आप टास्क बार पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आ रहा है काउंट 5 नंबर। ओके, काउंट 5 मतलब 5 नंबर है। ओके, एवरेज है 49। लुक 49 यहाँ पे एवरेज आ रहा है, and the sum is 249. Sum is 249 means the everything is going well. Okay, so let's start the functions. Okay, here we will put the count formula. Okay, and then we will select the given numbers, and then we will click on the, now the 5 is the numbers. Okay, so 1 2 3 4 5, so this is the numbers 5. अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे ऑटो सम फॉर्मूला में क्या होता है। अंडर द फॉर्मूला टैब ऑटो सम। अब ऑटो सम में क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑटो सम में हम लोग को टाइप नहीं करना है, वहां पे जाके सर्च नहीं करना। ऑटो सम में यहाँ पे गिरा दिया हुआ है, यहाँ पे ऑटो सम करेंगे, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ऑटो सम में ये फॉर्मूला क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमेशा ऊपर से नीचे काउंट करता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको काउंट करना है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें ओपन और क्लोज ब्रैकेट दोनों दिया होगा, उसके बीच में जो ऑप्शन आएगा उसको हम लोगों को सेलेक्ट करना है। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द hit on the enter button. We will find out we will get the sum of these numbers. Okay, now the same result is coming, it means it is correct. In same way we will go on that cell where we want to get the value, and then we will go in this auto sum tab. Okay, and then we will find out the average. We want to find out the average, then we have to click on the average, and then we have to select these numbers, and then we have to hit on the enter button. The same result is coming, it means it is correct. Under the maximum we have to select maximum. Why it is coming? It is auto, na, that's why it is selecting auto. Okay, so we have to delete it, and then we have to select this value, and then we have to hit the enter. Now the 96, see 96 is the maximum, again it is correct. Under the minimum we have to click on the minimum functions, then we have to select the given numbers, and then we have to click the 5 is the minimum value, it is again correct. And the count, under the count we have to select these numbers, and then we have to click that 5 is coming. Okay, so it means that we can use the same functions through the
insert function and the auto sum functions. बस द डिफरेंस इज दैट कि हम लोगों को यहाँ पे सर्च करना पड़ता है बिकॉज अंडर द insert functions all functions of this formula tab is coming. Okay, while in some auto sum functions very few numbers of the formula are coming. Okay, we have not to find in the auto sum functions. Okay, now the in recent used formula. In recent used formula, we will get the same, I mean, whatever we have used lastly. Okay, like हम लोगों ने count यूज किया, minimum, maximum, average. देखो सीक्वेंस देखो, हम लोगों ने count यूज किया था, then minimum, maximum, average and sum. तो इसीलिए ये सारा चीज आ रहा है, ठीक है ना. तो रिसेंट मतलब कि जो अभी अभी हम लोग यूज किए हैं, ठीक है ना. जो भी लास्ट फार्मूला हम लोगों ने यूज किया उसका सीक्वेंस वाइज आने लगता है कि हम लोगों ने ये यूज किया. तो इससे क्या होगा कि हमको दोबारा यूज करना होगा, तो वी कैन गो एंड क्लिक ऑन दैट फंक्शन. ओके, इन फाइनेंशियल फॉर्मूला में हम लोग पढ़ेंगे पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, डीवी एंड पीवी. ओके, सो इसमें क्या होता है, जैसे पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी में हम लोग क्या करते हैं कि पर मंथ ईएमआई, अगर किसी भी, जैसे कि हम लोगों ने कोई कार खरीदा 6 लाख का, जिसमें से 1 लाख हमने डाउन पेमेंट किया और 5 लाख लोन लिया. जो लोन लिया उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है बैंक का 8% लग रहा है, और ये लोन कितने ड्यूरेशन के लिए लिया, 5 इयर्स के लिए लिया. ओके, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसका ईएमआई, ठीक है ना, इसका ईएमआई जो होता है पर मंथ कितना जाएगा. ठीक है, तो पर मंथ कितना जाएगा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पीएमटी, पर मंथ हमारा ईएमआई कितना जाएगा. तो यहाँ पे टाइप करेंगे पीएमटी, देन वी विल हिट ऑन द टैब. ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट विल कम. उसके बाद हम लोगों को अब सेलेक्ट करना होगा. यहाँ पे बोल रहा है कि रेट क्या है, तो रेट 8% है, बट ये रेट जो 8% है हमको तो मंथली निकालना है. ये रेट एक 1% 1 ईयर के लिए बोल रहा है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, मंथली में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा 12 से, तो ये पर मंथ हो जाएगा. देन वी विल कॉमा नंबर ऑफ पीरियड. यहाँ पे एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड. तो कितने पीरियड के लिए, तो 5 इयर्स के लिए है. ये अगेन ईयर में है, 5 साल के लिए, तो हम लोगों को इसको मंथली में कन्वर्ट करना होगा, तो इनटू 12 करेंगे. मंथली कन्वर्ट हो गया, देन वी विल पुट द कॉमा. एंड उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, पीवी बोल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है इसका, तो प्रेजेंट वैल्यू इसका कितना है, 5 लाख. और उसके बाद हम लोग एंटर हिट करेंगे तो एक वैल्यू आएगा. ठीक है ना, ये वैल्यू को हम लोग डॉलर में आ रहा है तो इसको हम लोग कॉमा कर देंगे. तो ये कितना ईएमआई आएगा हमारा पर मंथ, 10,138 रुपया 20 पैसा. ठीक है, इतना ईएमआई हमारा पर मंथ देना होगा 5 साल तक, तो हमारा लोन कवर होगा. ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका जो ईएमआई है उसमें ईएमआई में इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट पार्ट कितना है. ठीक है ना, इंटरेस्ट पार्ट कितना है और इंटरेस्ट पार्ट कितना है, और इसमें प्रिंसिपल पार्ट कितना है. ठीक है, तो जब भी हम लोग को इंटरेस्ट पार्ट निकालना होता है तो हम लोग IMPT का यूज करते हैं. तो इक्वल्स टू IMPT, इक्वल्स टू IMPT, IPMT. ओके, उसके बाद हम लोग क्या मांग रहा है, रेट मांग रहा है. तो रेट कितना है, 8%. अब इसको हम लोग पर मंथ में डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे. अब ये पूछ रहा है, कॉमा देते हैं, अब ये पूछ रहा है पर मतलब कि किस इंस्टॉलमेंट के लिए. तो हम लोग किस इंस्टॉलमेंट के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जाएगा उसमें कितना होगा, जो हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये निकाले हैं ये 10,000 समथिंग, उसमें से कितना इंटरेस्ट जा रहा है और कितना प्रिंसिपल पार्ट. तो हमारा पहला ये इंस्टॉलमेंट है तो हम लोग 1 डालेंगे, देन कॉमा. उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है, तो ये कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए. ठीक है, अब इसको हम लोग फिर इसको कन्वर्ट करेंगे मंथ में, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कॉमा देंगे और
कितना हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू है इसका, तो इस पे 5 लाख से क्लिक करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, मतलब 3333.33 रुपीज जो है ये इंटरेस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे कि इसमें कितना प्रिंसिपल हम लोग अमाउंट जा रहा है। ठीक है ना, तो इक्वल्स टू पी पी एम टी, देन प्रेस द टैब, हिट द टैब एंड देन ओपन ब्रैकेट विल कम। उसके बाद से हम लोगों को फिर वही फॉर्मूला लगाना है। रेट पूछ रहा है, रेट हम लोगों ने डाला 8% पर ईयर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे पर मंथ में, तो डिवाइड करेंगे 12 से, देन कॉमा देंगे। अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए तो 1 प्रेस करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, अब इस पीरियड को हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे। 5 ईयर्स है, तो अगर हम लोग को मंथ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देना होगा 12 से, कॉमा देंगे, और टोटल अमाउंट कितना है 5 लाख, तो हम लोग एंटर करेंगे। अब देखिए तो हमारा इस 10,138 रुपया में जो EMI जा रहा है उसमें इंटरेस्ट हो रहा है 3,333 रुपया 33 पैसा, एंड जो प्रिंसिपल हमारा अमाउंट है उसमें है 6,804.86, मतलब 6804 रुपया 86 पैसा। ओके, अब इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इंटरेस्ट पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट को, तो वो जो EMI है उसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए अब इसको और इसको हम लोग यहाँ पे सम करते हैं, इक्वल्स टू सम, ये दोनों पार्ट को सम कर देंगे तो कितना आ गया 10,138 रुपया 20 पैसा। 10,138 रुपया, मतलब हमारा ये कैलकुलेशन, इसका मतलब कि ये ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पे अब पेज लेआउट में आपका सॉरी फॉर्मूला में नेक्स्ट आपका है लॉजिक फॉर्मूला। ये लॉजिक फॉर्मूला, ठीक है, लॉजिक में एंड, फॉल्स, इफ, ठीक है, ट्रू, ये सब आता है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग यूज करते हैं एंड का। ठीक है ना, तो एंड का हम लोग यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई राहुल, रोहन और सोहन है, जिनका मैथ और इंग्लिश का पेपर हम लोग दिए हैं, जिसमें से किसी ने 45, राहुल ने 45 एंड 41 स्कोर किया है, रोहन ने 95 एंड 32 स्कोर किया है, और सोहन ने 41 एंड 33 यूज किया है। तो मिनिमम पासिंग अगर मार्क्स हम लोग कैलकुलेट कर लें कि मिनिमम पासिंग मार्क्स इसका जो है ये 33 है। ठीक है ना, तो 33 अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब देखते हैं कि सारे पेपर में पास है कि नहीं। अगर पास है तो ओके आ जाएगा, और फेल है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इक्वल्स टू एंड फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद लॉजिक 1 है कि अगर दिस इज ग्रेटर देन 33, दिस इज ग्रेटर देन 33, तो ये हमको पास कर दे। और दूसरा है, दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं ये, इसमें भी इफ दिस इज ग्रेटर देन 33, तो हम लोगों को ये पास कर दे। ठीक है, तो ये ट्रू है, मतलब ये 33 से अबव है, ये 33 से अबव है, तो ये ट्रू है, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको पास कर सकते हैं। सेम ऐसे ही देखिए, अब ये 33 से बड़ा नहीं है। देखिए अब इसमें लॉजिक क्या है, देखिए ये 33 से अबव है एंड ये 33 से नीचे है, तो इसको फेल कर दिया, फॉल्स हो गया तो फेल हो गया। सेम वैसे ही ये 41 है 33 है, हम लोग लॉजिक क्या लगाए हैं कि ये 33 से अबव। अब अगर हम लोग इक्वल टू कर दें, तो इसमें अगर इक्वल टू कर दें, तो अगर इसी फॉर्मूला में हम लोग आइदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन कर दें, देन यहाँ पे इक्वल्स टू और ग्रेटर देन कर दें, तो देखो क्या होता है। देखो ये ट्रू हो गया, मतलब कि इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, मतलब अगर 33 नंबर मिनिमम आता है तभी भी वो पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एंड का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। देखिए आप यहाँ पे
आपका लॉजिकल फॉर्मूला के बाद टेक्स्ट फॉर्मूला है। टेक्स्ट फॉर्मूला में सब टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। जितने भी ये फॉर्मूला हैं सब टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक फॉर्मूला है लीन, ठीक है। अब लीन से क्या होता है, ये काउंट करता है कि कितना इसमें कैरेक्टर है, इक्वल्स टू LEN लीन। देन हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये बता दे रहा है 11 कैरेक्टर है। आप कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक स्पेस 11 कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट फार्मूला में हम लोग लोअर अपर एंड लेफ्ट राइट का यूज करेंगे। तो अब ये क्या, ये सब हम लोग को इसको लोअर में, लोअर जो टाइटल है इसका, जो कैरेक्टर का, उसको लोअर में करना है। तो इक्वल्स टू लोअर एंड देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा, सब लोअर में हो गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग प्रॉपर में करना है, यहाँ पे करते हैं इक्वल्स टू लोअर लोअर, और जिसको जिस टेक्स्ट को करना है उसको क्लिक कर देंगे तो ये लोअर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है तो इसको हम लोग करेंगे अपर, ठीक है। और इस टेक्स्ट को हम लोग अपर में लिख देंगे, अपर केस हो गया। तो ये केस पे लगता है, ठीक है ना। अपर केस एक और होता है प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो इक्वल्स टू, अगर प्रॉपर करते हैं प्रॉपर, तो जो स्मॉल है सबका फर्स्ट, जितना भी लेटर है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट राइट का यूज हम लोग करते हैं। लेफ्ट और राइट में क्या होता है कि जैसे कि लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया और इधर का राइट हो गया। तो अगर हम लोग लेफ्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो इधर का फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर आ जाएगा, सेकंड लिखेंगे तो 2 लेटर आ जाएगा, तीसरा लिखेंगे तो तीसरा भी लेटर उसमें आ जाएगा निकल के, जैसे कि इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट लगाते हैं और सोहन पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो सोहन पे हम लोग लगाया। अगर लेफ्ट केवल, तो ये अंडरस्टूड है, कॉमा हम कुछ नहीं दिया, एंटर मार दिया तो अंडरस्टूड है, फर्स्ट लेटर लेगा, ठीक है ना। अगर इसी में हम लोगों ने इसको कॉमा करके 2 लगा दिया तो 2 लेटर लेगा, 2, सोहन का SO आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉमा को 2 की जगह पे हम लोग इसको 4 कर दे तो 4 लेटर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग इसको 5 अगर कर देते हैं तो 5 लेटर आ जाएगा, ठीक है। 5 लेटर हो गया, देखो सोहन पूरा आ गया। सेम ऐसे ही हम लोग राइट का यूज करते हैं। अब ये लेफ्ट से ले रहा था, राइट का यूज करेंगे तो राइट से लेगा, ठीक है। तो राइट से लेंगे, अगर इसको हम लोग सेलेक्ट करके देखो, अगर कुछ नहीं सेलेक्ट करते हैं तो अंडरस्टूड है फर्स्ट लेटर R लेगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग कॉमा देके कहते हैं कि नहीं हमको 2 लेटर तक चाहिए, लास्ट 2 लेटर, 2 लेटर आ गया। अगर हम लोग इसको हम लोग 5 कर देते हैं तो लास्ट 5 मतलब पूरा कुमार आ जाएगा, ठीक है। और लीन का मैंने अभी बताया ही, ठीक है। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मान लीजिए एक डेट दिया हुआ है, पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, और इसमें हम लोगों को कौन सा मंथ है, कितना ईयर है, कौन सा ईयर है और कौन सा डे है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर ईयर करना है तो इक्वल्स टू YEAR ईयर, ओके, इक्वल्स टू YEAR ईयर, और इस जिसमें से निकालना है उस पर हम लोग क्लिक करना है, ठीक है। तो ये कौन सा ईयर हो गया, 2021। मंथ कौन सा चल रहा है इसमें, इसमें मंथ कितना है, तो MONTH मंथ, इसको सेलेक्ट करेंगे इससे, तो 4th मंथ मतलब अप्रैल, 4th मंथ हो गया। डे कौन सा है, इक्वल्स टू डे, एंड देन हम लोग उसको सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो हमारे पास दिन आ जाएगा, मतलब कि तीसरा दिन है, चौथा मंथ है और 2021 ईयर चल रहा है। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इंडेक्स का और मैच का यूज क्या करते हैं, ठीक है ना। इंडेक्स और मैच, तो मैंने आपको बोला था कि वी लुकअप, जो वी लुकअप है, आपने सुना होगा वी लुकअप का नाम, एच लुकअप एंड वी लुकअप। वी मतलब वर्टिकल लुकअप करता है एंड एच मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो वो उसमें क्या डिमेरिट होता है कि वी लुकअप जो होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है, ऑलवेज हमेशा लेफ्ट टू राइट लुक करता है, वाइल जबकि इंडेक्स फार्मूला जो होता है वो दोनों तरफ लुकअप करता है। तो बेनिफिट यही है कि इंडेक्स फार्मूला बहुत अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना, दोनों तरफ लुकअप करता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स फार्मूला कैसे लगाएंगे कि जैसे मान लीजिए इक्वल्स टू इंडेक्स, ठीक है।
इंडेक्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि पूरा एरे बताइए, तो हमको पूरा एरे ये सेलेक्ट करना है कि ये पूरा में हमको बताना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कौन सा रो, रो अगर हम करते हैं तो मान लीजिए फर्स्ट रो का फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट रो के फर्स्ट में मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है, 1 है, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट रो के तीसरा कॉलम में क्या है, तो देखो राम है, जैसे फर्स्ट रो ये हो गया और ये फर्स्ट रो हो गया, कॉलम 1 2 3, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा कॉलम उठा रहा है। सेम अगर हम कहते हैं कि नहीं हमको थर्ड रो का थर्ड कॉलम चाहिए, तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम क्या होगा, राघव, देखो राघव, ये फर्स्ट फर्स्ट रो 1 2 3, तीसरा रो का और तीसरा कॉलम मतलब 1 2 3, ये क्या करता है कि इस तरह लुकअप करता है, मान लीजिए ये और ये इधर से लुकअप किया ऐसे, ठीक है। तो यहां से काउंट किया 1 2 3, तीसरा रो एंड द कॉलम कितना 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये है, इसको इसने 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, तो ये उसको उठा लिया। अब मैच का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो मैच में ये बताता है कि कितना, जैसे सेल नंबर कितना है, इसमें सेल नंबर कितना है, ठीक है ना। हम लोग इसको दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं, आगे वाले जो एडवांस फंक्शंस का मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आई विल टेल इन दैट, ठीक है ना। तो रो हम लोग मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मैच में चलो हम लोग देखते हैं, MATCH, मैच में बताता है एग्जैक्ट लोकेशन, लुकअप वैल्यू, क्या देखना है, ठीक है ना। जैसे अब इसमें क्या सर्च करना है ये कहता है, ठीक है ना, देखना क्या है, तो देखना हम लोगों को मान लीजिए राघव है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इक्वल्स टू मैच फॉर्मूला, हम लोगों को लुकअप ये करना है राघव, ठीक है ना, राघव को लुकअप करना है और लुकअप एरे इतना, ठीक है ना। इस एरे में अब क्या करना है नहीं, इक्वल्स टू मैच, क्या देखना है राघव, और राघव को किस में देखना है, इस वैल्यू में, तो राघव का ये एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा ये, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है ना। ये यहाँ से नहीं ले रहा है, इसको हम लोग मैच का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, चलिए राघव इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। मैच इक्वल्स टू मैच, देन हम लोग को क्या देखना है, राघव किस में देखना है, इस पूरे एरे में, तो ये बताएगा नॉट अप्लीकेबल, इक्वल्स टू मैच लुकअप वैल्यू, क्या देखना है हम लोगों को, तो लुकअप वैल्यू मान लीजिए राहुल देखना है, ठीक है। लुकअप एरे, एरे मतलब इसमें लुकअप वैल्यू ये करना है और एरे इसमें, तो 1 पे है, ठीक है ना। जैसे जैसे हाँ अब मान लो मुझको राहुल का लोकेशन पता करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, राहुल का लोकेशन पता करना है, तो यहाँ पे मैच फॉर्मूला लगाएंगे, मैच, ठीक है। अब कहता है क्या क्या करना है, तो आपको लुकअप वैल्यू मतलब राहुल को सर्च करना है,
किस एरे में, तो इस एरे में है। अब इस एरे में है, एंटर मारेंगे तो ये बताएगा 1, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर हम लोग यहीं पे राहुल की जगह पे अगर सोहन को सर्च करते तो सोहन को थर्ड पे आ जाता, तो ये कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे। तो इस तरीके से इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया फॉर्मूला में, अब लुकअप रेफरेंस हमने पढ़ दिया, मैथ और टेक्नोमेट्री पढ़ दिया, मोर फंक्शंस। अब मोर फंक्शंस में आपका स्टैटिक इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कैपेबिलिटी एंड बहुत सारे आते हैं। तो इसमें से हम लोग कुछ कुछ चीजें पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मैथ फॉर्मूला का, ठीक है। अब मैथ में एबीएस होता है, ठीक है। तो एबीएस का काम होता है कि कोई भी नंबर्स अगर निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, कोई भी नंबर्स निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो चलो देखते हैं कैसे करता है, क्या ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू लगाएंगे, ई इक्वल्स टू ए बी एस, एंड देन टैब बटन को प्रेस करेंगे और उस नंबर को सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे। तो ये 3 आ गया। तो ये क्या हो गया, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। सेम अगर हम सबको करते हैं तो प्लस में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो माइनस रहेगा उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सही आ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है इवन का। अब इवन में क्या होगा, ये बताएगा कि ये इवन नंबर है कि नहीं। अगर इवन नंबर होगा तो सेम वहां पे प्रिंट करेगा, अगर इवन नहीं नंबर होगा तो सजेस्ट करेगा कि इसका नेक्स्ट जो इवन नंबर होगा कौन सा होगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू इवन नंबर हम लोग को पता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो इक्वल्स टू अगर इवन हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं इवन, ठीक है। अब उसके बाद उस नंबर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके करते हैं, एंटर मारते हैं। तो -4, क्योंकि 3 इज नॉट इवन नंबर, 3 इवन नंबर है तो ये सजेस्ट कर रहा है कि 4 इज इवन नंबर। सेम यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 इवन नंबर नहीं है तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 ही दिखाएगा, यहाँ पे 1 नहीं है तो 2 दिखाएगा इवन नंबर। सेम अगर ऐसे ही इवन नंबर की जगह पे हम लोगों को अगर पता करना है कि ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो ये बोलेगा 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है ही। अगर ये ऑड नंबर नहीं होता, जैसे 2 है, तो उसका नेक्स्ट नंबर जो बोलेगा 3 ऑड नंबर है। इसका 1 का 1 ऑड नंबर है, इसका 0 का 1 ऑड नंबर है, एंड 1 का 1 ऑड नंबर है। तो ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम रांड का यूज करते हैं, ठीक है ना। रांड, रांड और रांड बिटवीन, जब हम भी कोई भी फॉर्मूला, जब भी हम कभी भी कोई चीज एज ए एग्जांपल दिखाना होता है और रैंडमली नंबर उठाना होता है तो हम लोग रांड का यूज करते हैं, ठीक है ना। इक्वल्स टू रांड, ठीक है ना, इक्वल्स टू रांड मार दिए तो कोई भी वैल्यू आ गया। अब ये 1 से नीचे ही रहेगा, ठीक है ना, कितना भी हम लोग कर लें ये 1 से नीचे ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रैंडम वैल्यू लेते हैं। अगर हमको इसको स्पेसिफाई करना होगा, जो सेकंड रैंड बिटवीन देना है कि इक्वल्स टू रैंड रांड बिटवीन, और इसमें हम लोग देंगे कि 1 से 100 के बीच में ही वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 71 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दिया, 71 के बीच में ही आएगा, जितना भी लेगा सब 100 के बीच में ही, 1 एंड 100 के बीच में ही लेगा, ठीक है, ये नंबर्स। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन से, इस तरीके से हम लोग राउंड बिटवीन का मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन है मोड, और मोड फंक्शन में आपको जैसे कि स्टैटिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है। अब इसमें से हम लोग एक एक सब में से एक एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो इन सब में से एक एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो जैसे काउंटा है, मैंने आपको बोला था कि आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंटा। सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर, ठीक है ना। यहाँ पे काउंट है, काउंट एंड काउंटा। काउंट एंड काउंटा में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 ए बी एंड 5 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला काउंटा लगाते हैं, तो काउंटा में देखिए क्या डिफरेंस आएगा, इक्वल्स टू काउंटा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग सब करेंगे तो ये टोटल नंबर्स को काउंट कर लेगा। टोटल नंबर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल नंबर आ गया, ठीक है ना।
6 क्यों दिखाया, इसने अल्फाबेट को भी काउंट कर लेता है, ठीक है ना, उस सेल में जो भी रहेगा उसको काउंट कर लेगा। तो इसका एप्लीकेशन काउंट करके सेल में टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग काउंट लगाएंगे इक्वल्स टू COUNT काउंट, तो ये केवल नंबर्स को काउंट करेगा, ठीक है। देखो 4 आ गया, तो नंबर कौन कौन सा है, 1 2 3 एंड 5। हाउ मेनी नंबर्स आर दिस, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 किया, तो ये डिफरेंस है काउंट एंड काउंट में, ओके। नेक्स्ट का आपका है काउंट ब्लैंक। अब इसको हम लोग काउंट ब्लैंक में हम लोग को कितना, इस जो रो जो कॉलम जिसमें भी हम लोग सर्च करें उसमें कितना ब्लैंक है ये काउंट करता है। तो इक्वल्स टू काउंट काउंट ब्लैंक, ठीक है। अब इसमें तो ब्लैंक है नहीं, तो देखो ब्लैंक नहीं है तो ये 0 कर देगा, ठीक है। 0, एक भी ब्लैंक नहीं है। अगर इसमें से हम लोग एक नंबर भी डिलीट करते हैं तो 1, 2 नंबर डिलीट करते हैं तो 2, 3 नंबर डिलीट करते हैं तो 3। इस तरीके से ये हम लोग इसका एप्लीकेशन इस तरीके से यूज करते हैं। और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इसका हम लोग कैसे एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, देखो जैसे कि ये है आपका, ये इट इज ऑलरेडी इन डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर में है, ठीक है ना। अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को इक्वल्स टू डेसिमल नंबर टू बाइनरी करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेसिमल नंबर टू बाइनरी क्लिक हो गया, ठीक है। अब इसका देखो सबका बाइनरी नंबर, जैसे कि हम लोग को पता है कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को ही मतलब रीड करता है, बाइनरी कोड में ही 1010 को ही रीड करता है। तो ये क्या कर दिया कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल। अब इसको हम लोग बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल्स टू बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। देखो सेम नंबर आ गया, तो बाइनरी टू ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका एप्लीकेशन हम कंप्यूटर करता है, ठीक है ना। इज ब्लैंक, इज ब्लैंक, इज ब्लैंक। अब इज ब्लैंक और इज टेक्स्ट, देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लगाते हैं इज ब्लैंक। तो ये बताए इज ब्लैंक इक्वल्स टू इज ब्लैंक, इज ब्लैंक। तो ये बोल रहा है कि क्या ये ब्लैंक है, तो ये कह रहा है नहीं ब्लैंक नहीं है। अगर इसको हटा देंगे तो ये कहेगा या ट्रू इट्स ब्लैंक, ठीक है ना, ये ब्लैंक नहीं है। सेम अगर ऐसे ही, तो ये कह रहा है नहीं ये ब्लैंक नहीं है। अगर इसमें से कोई भी टेक्स्ट को ब्लैंक कर देंगे इसमें से, तो यस ट्रू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन का यूज करते हैं। अब ये देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज टेक्स्ट, क्या इसमें टेक्स्ट है, ये सेलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू इज टेक्स्ट। तो टेक्स्ट है इस सेल में, नहीं नहीं है टेक्स्ट, ठीक है ना, मतलब टेक्स्ट ABCD कैरेक्टर कोई है नहीं है। देखो अब इसमें ट्रू बोल रहा है, ADF में ट्रू बोल रहा है, हाँ इसमें टेक्स्ट है। अगर इसमें नंबर भी मैं डाल दूं ना तभी भी वो काउंट कर लेगा कि हाँ टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, ठीक है ना। अगर इसमें हम लोग अगर कोई अल्फाबेट डाल देते हैं तो ये काउंट कर लेगा, उसको टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में, ठीक है। देखो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका एप्लीकेशन ये सारा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फॉर्मूला में इंसर्ट फंक्शंस, ठीक है। देन वी कवर्ड ऑटोसम, एंड देन रिसेंटली यूज्ड फॉर्मूला, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप रेफरेंस, मैथमेटिक्स एंड मोर फंक्शंस। अब कुछ चीजें होती है जैसे ट्रेस प्रेसिडेंट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया है तो इसको ट्रेस करेगा कि किस कैसे कैसे ये आया है। देखो तो ये यहाँ से सम किए हैं तो ये आया है, ठीक है। अब इस प्रेसिडेंट के अब डिपेंडेंट कर देते हैं, ठीक है ना, ट्रेस डिपेंडेंट। तो यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट, अब इस ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है ये बता देगा कि ये यहाँ यहाँ यूज हुआ है, इसलिए इसको ट्रेस डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सेल का हम लोग यूज करते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला टैब है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, क्योंकि ये मेन मेन आपका कहीं भी काम करेंगे तो ये सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। So guys, hope you all understood this and do the practice regularly so that you can get it easily and can never forget it. So guys, this is all for the day. Thank you for watching this video and also suggest your friends to watch this video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.